For our worship, we read from Psalm 18. हमारी इबादत के वास्ते हम मज़ामिर की किताब 18वां बाब पढ़ेंगे। We shall read first 8 verses responsively. बारी बारी से पहली 8 आयतें हम पढ़ेंगे। I will love thee, O Lord, my strength. यहोवा मेरी चट्टान और मेरा किला और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा खुदा मेरी चट्टान जिस पर मैं भरोसा रखूंगा, मेरी सिपर और मेरी नजात का सींग, मेरा ऊंचा बुर्ज। I will call upon the Lord, who is worthy to be praised, so shall I be saved from mine enemies. मौत की रस्सियों ने मुझे घेर लिया और बेदीनी के सैलाबों ने मुझे डराया। Verse 5. The sorrows of hell compassed me about, the snares of death prevented me. अपनी मुसीबत में मैंने यहोवा को पुकारा और अपने खुदा से फरियाद की। उसने अपनी हैकल में से मेरी आवाज सुनी और मेरी फरियाद जो उसके हुजूर थी उसके कान में पहुंची। Then the earth shook and trembled, the foundations also of the hills moved and were shaken, because he was wrath. उसके नथनों से धुआं उठा और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी, कोयले उससे दहक उठे। Let us pray. दुआ करेंगे। Our living, loving Father, most gracious and merciful God, we thank you and praise you for the provision made to come to our house this Lord's Day, spend some time praising thee and worshipping thee. Thank you for the help granted in worshipping thee through songs. Now, Lord, for individual worship, we look unto you. Prepare everyone us from the portion of the scriptures just now we read. Help us in meditating the word. May the Holy Spirit help us. In Jesus' precious name we pray. आमीन। This Psalm 18 is one of the Psalms of King David. ये 18वां मज़ामिर का 18वां बाब जो है ये दावीद का नगमा है। Yeah, in 2 Samuel chapter 22 also we read the same psalm. अगर हम दूसरा समूएल बाब नंबर 22 पढ़ेंगे तो वहां भी हम इसी मजमूर को वहां देखेंगे। Yeah, David, when he was delivered from the hands of all his enemies, he especially from the hands of Saul, he composed this psalm. ये यहोवा ने जब दावीद को अपने सारे दुश्मनों से खास करके साउल के हाथ से बचाया, तब उसने ये नगमा गाया। Yeah, during all his days of difficulties, God was with him. उसकी मुसीबत के पूरे दिन खुदा उसके साथ ही रहे। The Lord did not desert him. खुदा ने उसे कभी छोड़ा नहीं। Yeah, so filled with gratitude, he is worshiping God. इसीलिए शुक्रगुजारी अदा करते हुए ये इस नगमे से वो खुदा का शुक्रगुजारी अदा कर रहा है। He says in verse 1, I will love thee, O Lord, my strength. पहली आयत में कहता है, ए यहोवा, ए मेरी कुव्वत, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। He says, Lord, I will love thee. वो कहता है, ए यहोवा, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। Yeah, why did he utter this word? ये बातें उसने कहाँ बताई थी या बोली थी? Yeah, so when no one was loving him and he understood the love of God, and now he says, Lord, I love thee. जिस हालत में जब वो था, जिस हालत में जब सब के सब लोग उसे छोड़कर चले गए, जब वो अकेला बन गया था, उस वक्त वो कहने लगा कि मैं यहोवा से मोहब्बत रखूंगा। Then he says, Oh Lord, my strength. और उसके बाद कहता है, मेरा खुदा यहोवा जो है वो मेरी कुव्वत है। He was without strength, hiding himself in the caves and in the wilderness. उसके पास कुछ भी कुव्वत नहीं थी। वो भागते भागते वादियों में या गुफाओं में जाकर रहता था। Yeah, he was living without any strength. वो बिल्कुल कुव्वत खो बैठा था, बगैर कुव्वत के वो जी रहा था। Now he says, Lord, you are my strength. इसीलिए वो आप कह रहा है, ए यहोवा, तू ही मेरी कुव्वत है। Yeah. So he loved the Lord and God has become his strength. इस तरीके से उसने खुदा पर अपनी मोहब्बत जताई और खुदा ही उसकी एक कुव्वत बन गया। In verse 2, he uses many adjectives
tell about the greatness of God. और आयत नंबर 2 में वो बहुत सारे एडजेक्टिव्स इस्तेमाल करता है अपने खुदा के लिए गाते हुए। He says, "The Lord is my rock." वो कहता है कि यहोवा मेरी चट्टान है। Yeah, rock speaks about stability. चट्टान का मतलब क्या है? वो बहुत कायम रहने वाली चीज है। Yeah, when you stand on a rock, it will not be moved. अगर हम किसी चट्टान पर खड़े हो जाएंगे तो वो हिलती नहीं है वो चट्टान। Yeah, for our strong standing, we need a rock. मजबूती से खड़े होने के लिए हमें एक चट्टान की जरूरत पड़ती है। Yeah, he means that God is my rock. That means He will never leave me, never forsake me. I will be firm in Him. इसीलिए दाविद कहता है कि मेरा खुदा जो है वही मेरे लिए चट्टान है, वो कभी मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझसे दूर ना होगा, मैं उसमें मजबूती से रहूंगा करके वो ये बातें कह रहा He है। is an unchanging God. वो कभी भी नहीं बदलने वाला लातब्दील खुदा है। Everything will change in this world, but our God, He doesn't change. दुनिया में सब कुछ हर चीज बदल सकती है, लेकिन हमारा खुदा यहोवा लातब्दील है। From everlasting to everlasting, the same. अबद से लेकर अजल तक वो लातब्दील है, यकसा है। He will not change in His love and His mercy and grace towards His people. अपनी मोहब्बत में, अपने रहमो फजल में, अपने लोगों की तरफ वो लातब्दील है। That's what He understood. You are my rock. इसीलिए वो कह रहा है, तू ही मेरी चट्टान है। We change, we people we change, but God, the eternal God, He never changes. हम तो इंसान हैं, हम तो बदल जाते हैं, लेकिन वो अब्दी खुदा है और वो लातब्दील रहता है। Yeah, God speaks through the prophets. He said, I will not change. खुदा भी अपने नबियों के मारिफत बातें करते हुए वो कहता है ना कलाम में कि मैं यहोवा हूँ, मैं लातब्दील हूँ। You are not consumed because I change not. क्योंकि मैं लातब्दील हूँ, तुम लोग भस्म नहीं हुए। Yeah. Then secondly He says, thou art my fortress. और उसके बाद वो कहता है, तू मेरा किला है। Yeah, fortress speaks about protection. किला का मतलब ये होता है कि वो एक महफूज जगह है। Yeah, in those olden days, the kings they used to build big fortresses around them in the palace. पुराने जमानों में बादशाह लोग क्या करते थे, अपनी रहाइशगाह कहाँ रखते थे? बड़े बड़े किले बनाकर उनमें अपनी रहाइशगाह रखते थे। It's very difficult to cross the fortress and destroy the kings. एक बड़े किले पर हमला बोलकर उसे नेस्तो नाबूद करना बहुत मुश्किल होता है। So in the fortress there will be soldiers and safeguarding the king and his family. क्योंकि किले में बहुत सारे सैनिक होते हैं, जवान होते हैं और वो लोग अपने बादशाह को हिफाजत से रखते हैं। As long as the king is in his fortress, he feels safety and security. बादशाह भी जब तक वो अपने किले में रहता है तब तक वो बहुत महफूज है, एहसास रखता है। But many times these earthly kingdoms and fortresses were destroyed. लेकिन बहुत सारी बार हम ये देखते हैं कि ये जमीनी किले जो होते हैं, इन सब को कभी न कभी किसी न किसी आकर उनको नेस्तो नाबूद कर देता है। But our God is the fortress which no one can pass through, and we are safe and secure in Him. लेकिन हमारे खुदा यहोवा ऐसे किले हैं जिन पर कोई भी हमला नहीं बोल सकता या उन पर कोई भी गालिब नहीं आ सकता। He protects us so secure that no one can take us from His hands. वो हमें ऐसे तहफ़्फ़ुज़ बख्शता है कि उसके हाथों से कोई भी आकर हमें खींच कर चुरा कर ना ले जा सकेगा। That much security He gives His people. अपने लोगों को इस तरह की अजीम तहफ़्फ़ुज़ वो बख्शता है। Yeah, when David was hunted by Saul, he was hiding and wanted to eliminate him, but God has protected him so securely. जब साऊल दावीद को पकड़ना चाहा और दावीद को मार देना चाहा और दावीद उसे भागते रहा, लेकिन खुदा ही ने दावीद को बड़े अजीब और गरीब तरीके से दावीद को महफूज रखते आया। David understood the greatness of God, how He protected him.
और इसीलिए दावीद ने पहचाना कि किस तरीके से खुदा ने उसे साउल से बचाकर कितनी अजीम तहफ़्फ़ुज़ से उसकी हिफाजत की थी, दावीद याद कर रहा है। Our God is a good shepherd. हमारा खुदा जो है वो अच्छा चरवाहा है। The good shepherd knows how to protect his sheep. एक अच्छा चरवाहा जानता है कि अपनी भेड़ों की हिफाजत किस तरीके से किए जाए। See in John's Gospel chapter 10 देखें यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 10 verse 28. 10 की 28। And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. यूहन्ना की खुशखबरी 10 की 28 और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूँ और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। Verse 29. 29वीं आयत। Yeah, my Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. मेरा बाप जिसने मुझे वो दी हैं सबसे बड़ा है और कोई उन्हें बाप के हाथ से नहीं छीन सकता। Yeah, personally, David understood the safety what God has given to him. दावीद ने निजी तरीके से जान लिया कि खुदा ने किस तरह की तहफ़्फ़ुज़ उस पर अता की है। The day when we give our life in His hands, we need not worry. God protects us. जब हम हमारी जानें खुदा के हाथों में सौंपते हैं तो हमें डरने का नहीं, क्योंकि खुदा हमें महफूज जरूर रखेगा। Yeah. Then come back to Psalm 18. फिर वापस आएंगे मज़ामिर की किताब 18वां बाब Verse 2. और आयत नंबर 2। My deliverer. मेरा छुड़ाने वाला। God delivered David from the hands of all his enemies. खुदा ने दावीद को उसके सारे दुश्मनों के हाथों से छुड़ाया भी है। What a wonderful God. कितना अजीम खुदा है ना। He says, he is my deliverer. इसीलिए वो कहता है मेरा खुदा मेरे छुड़ाने वाला है। He delivered and he will deliver all time. वो उसने मुझे छुड़ाया और हमेशा छुड़ाते ही रहेगा। And then he says, he is my God. और वो कहता है वो मेरा खुदा है। My God. मेरा खुदा है। I came into this world because of him. इस दुनिया में मैंने उसकी वजह से आया है। I go to him all time. मैं हमेशा उसके करीब जाना चाहूंगा। No God beside him. उसके अलावा कोई और खुदा, यहोवा के अलावा कोई और खुदा ही नहीं है। Then he says, he is my strength. और उसके बाद वो कहता है वो मेरी कुव्वत है। I will trust in him. He is my buckler, the horn of my salvation. और कहता है मैं हमेशा उस पर भरोसा रखूंगा, वो मेरी सिपर और मेरी नजात का सींग है। He is my buckler. मेरी सिपर है। He is the horn of my salvation. और मेरी नजात का सींग है। He is my high tower. और मेरा ऊंचा बुर्ज है। What all the wonderful words that David used to describe God's goodness in his life. उसकी जिंदगी में खुदा की खूबी और अच्छाई का इजहार करने के लिए दावीद कितने कितने अच्छे शीरीन अल्फाजों को मुस्तमिल रखता है। देखें, Yeah, these are all his personal experiences. ये सब के सब जो हैं ये दावीद के निजी तजुर्बे हैं। Verse 17 he says, और 17वीं आयत में वो कहता है He delivered me from my strong enemy and from them which he hated me. They were too strong for me. उसने मेरे जोरावर दुश्मन और मेरे अदावत रखने वालों से मुझे छुड़ा लिया, क्योंकि वो मेरे लिए निहायत जबरदस्त थे। Yeah, for us, devil is our enemy, and he put us in his captivity, and he troubled us, and from him God has delivered us. हमारी जिंदगी में भी सातान जो है हमारा मुखालिफ जो है उसने हमको अपने कब्जे में रखा और हमें सताते आया, लेकिन हमारे खुदा यहोवा ने हमें उसके कब्जे से छुड़ाया और अपना बना लिया। Yeah, through Lord Jesus Christ and his shed blood on the cross, you are delivered from the strong enemy. हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशुआ की वजह से, उनके खून की वजह से जो सलीब पर बहाया गया है, हम दुश्मन के हाथों से छुड़ाए गए हैं। Yeah, the day when Adam and Eve they disobeyed God in his commandment and they became sinners. जब आदम और खव्वा ने
बागे एदेन में गुनाह किया, खुदा के सामने एक सरकशी की, तब वो गुनहगार बन गए Yeah, they came under the control of the devil, और वो लोग सातान के कब्जे में आ गए and fear came upon them. और उनके ऊपर डर छा गया था Yeah, so death was passed upon them. और मौत आ गई थी और उनसे मौत सब लोगों तक आ रही है। Yeah, but God, and He loved us and sent Jesus Christ for our redemption. Jesus Christ has delivered us from our strong enemy. लेकिन हमारे खुदा ने हमसे मोहब्बत रखते हुए अपने इकलौते बेटे यीशुआ को हमारे वास्ते इस दुनिया में भेजा और खुदावंद यीशुआ ने हमें इस दुश्मन से छुड़ाया। Yeah, see, book of Hebrews chapter 2 देखें इब्रानियों की किताब बाब नंबर 2 and verse 14 and 15. और आयतें 14 और 15। For as much then as the children of the partakers of the flesh and the blood, He also Himself likewise took part of the same, and through the death He might destroy that had a power of death, that is the devil, and deliver them who through the fear of death were lifetime subject unto bondage. बस जिस सूरत में के लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं, तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ, ताकि मौत के वसीले से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी मुफ्तरी को तबाह कर दे। By dying on the cross, Jesus Christ brought victory for us. सलीब पर मरने की वजह से हमारे खुदावंद यीशुआ ने हमारे वास्ते गलबा हासिल की है। He brought deliverance for all of us. He has won victory for us on the cross of Calvary. हम सबों के लिए खुदावंद यीशुआ ने सलीब पर गलबा हासिल करके हम सबों को उसने छुड़ाया है। So we praise Him and worship Him because God has delivered us through His Son Lord Jesus Christ. इसीलिए हम अब खुदा की इबादत करते हैं, क्योंकि उसने अपने बेटे की मौत और जी उठने के सबब से हमको छुड़ाया है। And we tell Lord, thou art my deliverer. और इसीलिए हम खुदावन से कहते हैं, ऐ मेरा खुदावन तू ही मेरा छुड़ाने वाला है। Then we say, Lord, you have become my strength. और उसके बाद वो कहता है, ऐ मेरे खुदा तू ही मेरी कुव्वत बन गया है। Because of our sins we were living upon this earth without any strength upon this earth. हमारे गुनाहों के सबब से हम इस दुनिया में बिना कुव्वत जीने लगे हैं। Yeah, so sinners have no strength, no guts to stand before God. मतलब कहने का मतलब ये है कि खुदा के सामने खड़े होने के लिए हम जैसे गुनहगारों को कुव्वत नहीं रहती या ताकत या दिलेरी नहीं होती। Yeah, in the book of Romans 5 and we are told when we were yet without strength and Christ died for us. रोमियो की किताब में हम पढ़ते हैं कि जब हम कमजोर ही थे, खुदावंद यीशुआ हमारी खातिर मुआ। Yeah, verse 6. आयत नंबर 6। When we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly. क्योंकि जब हम कमजोर ही थे, तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर मुआ। Yeah, now God has become our strength. अब हम जानते हैं कि हमारा खुदा ही हमारा जोर, हमारी कुव्वत बन चुका है। He has taken away all the fears in our lives and He has given us the great strength. उसने हमारी जिंदगियों में से पूरा का पूरा डर निकाल दिया और अपनी कुव्वत और अपना जोर हमें बख्शा है। Yeah, how David he worshipped God, so also this morning, this evening, we can worship this living God. जिस तरीके से दावीद ने इन बातों को जानकर अपने खुदा की इबादत की थी, आज शाम को हम भी हमारे खुदा की इबादत इन बातों को जानकर समझकर करेंगे। Then Psalm 18. और फिर से हम आएंगे मज़ामिर की किताब बाब नंबर 18 verse 25. और आयत नंबर 25। With a merciful thou wilt show thyself merciful, and even up to that right man thou shalt show thyself upright. रहम दिलों के साथ तू रहीम होगा और कामिल आदमी के साथ कामिल। Yeah, he understand the mercies of God. वो उसने जाना कि खुदा की रहमतें किस तरह की हैं। So for the unworthy people, God shows His mercy. जो लोग
बहुत नालायक होते हैं, उन पर खुदा ने अपना रहम बरसाया। Yeah, in the later days when he wrote Psalm 103, he says many things about the mercies of God. बाद में जब दावीद ने 103 बाब लिखा था, तो वहाँ खुदा की रहमतों को लेकर बहुत सारी बातें बताता है। Verse 8. 8वीं आयत, Yeah, the Lord is merciful and gracious, slow to anger and plenteous in mercy. यहोवा रहीम और करीम है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी। And then again he says his mercy is a great mercy. और उसके बाद वो कहता है कि उसकी रहमत जो है वो बहुत अजीम है। Verse 11. 11वीं आयत, Yeah, as for the heaven is high above the earth, so great is his mercy toward that fear him. क्योंकि जिस कद्र आसमान जमीन से बुलंद है, उसी कद्र उसकी शफकत उन पर है जो उससे डरते हैं। Yeah, verse 17. 17वीं आयत, The mercy of the Lord is from everlasting to everlasting upon them that fear him. यहोवा की शफकत उससे डरने वालों पर अज़ल से अबद तक, और उसकी सदाकत नस्ल दर नस्ल है। He says he is a God who has plenteous in mercy and he is a great mercy. Then he says everlasting mercy. इस तरह वो कहता है कि खुदा की रहमत जो है वो अजीम है और वो शफकत में गनी है, और वो अपने लोगों पर अज़ल से अबद तक शफकत दिखाते रहता है। Day by day his mercies are new every morning. हर दिन ब दिन उसकी रहमत हम पर नई सी रहती है। Yeah, because of that mercies we are not consumed. और क्योंकि हमारा खुदा हम पर इस तरह रहमदिल है, हम नेस्तो नाबूद नहीं हुए। Yeah, David enjoyed new mercies every day. दावीद ने अपनी जिंदगी में हर दिन नई रहमतें उसने चखा था। Yeah, chapter 3, Lamentation, verse 22. नोहा की किताब बाब नंबर 3 और आयत नंबर 22। It is the Lord's mercies that we are not consumed because his compassion fail not. ये यहोवा की शफकत है कि हम फना नहीं हुए, क्योंकि उसकी रहमत लाजवाल है। Yeah, verse 23. 23वीं आयत, Yeah, they are new every morning. Great is thy faithfulness. वो हर सुबह ताजा है, तेरी वफादारी अजीम है। Every day in days of our difficulties and problems and after our salvation and what all we face, God shows his new mercies. हमारी जिंदगी में हर दिन खुदा हमारे साथ रहता है, उसकी शफकतें जो हैं हमारी जिंदगी में हर दिन नई हैं। And verse 29. 29वीं आयत, Psalm 18, verse 29. मज़ामिर की किताब 18वां बाब और 29वीं आयत, For by thee I have run through a troop, and by my God I have leaped over a wall. क्योंकि तेरी बदौलत मैं फौज पर धावा करता हूँ और अपने खुदा की बदौलत दीवार फांद जाता हूँ। Any challenge which we face, we overcome through our God. किसी भी मुसीबत हमारी जिंदगी में हमारे सामने क्यों ना आए, हमारे खुदा की कुव्वत पाकर हम उनको फांद देते हैं। Verse 30. 30वीं आयत, As for God, his way is perfect. The word of the Lord is tried. He is a buckler to all those that trust in him. खुदा की राह कामिल है, यहोवा का कलाम ताया हुआ है, वो उन सब की सिपर है जो उस पर भरोसा रखते हैं। Yeah, then verse 33 he says, he maketh my feet like a hind's feet, setteth me upon my high places. 33वीं आयत, वही मेरे पांव हरनियों के से बना देता है और मुझे मेरी ऊंची जगहों में कायम करता है। The hinds, their feet are so slender, but very strong, able to escape from the predator. हिरन जो होते हैं, उनके पांव जो होते हैं बहुत देखने के लिए बहुत नाजुक होते हैं, लेकिन जब उन पर धावा बोलने वाले आते हैं, हमला करने वाले आते हैं, शिकार करने वाले आते हैं, तो वो बहुत आसानी से फांद कर चले जाते हैं। Yeah, that much that David enjoyed, how God escaped him from the enemy. इस तरीके से दावीद जिक्र कर रहा है कि खुदा ने किस तरीके से उसे भी उसे शिकार करने वाले जब आए, उसके दुश्मन से खुदा ने कैसे छुड़ाया। Verse 34. वर्स नंबर 34, He teacheth my hands to war,
so that the bow of steel is broken by mine arms. वो मेरे हाथों को जंग करना सिखाता है, यहाँ तक कि मेरे बाजू पीतल की कमान को झुका देते हैं। So much that God gives him strength, even the bow of steel is broken. देखें, यहाँ कहता है कि खुदा उसे इतनी मजबूती से ताकत बख्शता है कि उसकी ताकत एक पीतल की कमान को झुका देने वाली है। Any weapon which is formed against God's people shall not prosper. कोई भी आला जो खुदा के लोगों के खिलाफ बनाया जाता है वो कामयाब नहीं रहता। Satan attacks God's people in several ways. सातान बहुत सारे तरीकों में खुदा के लोगों पर वार करता But है, he gives us strength to overcome. लेकिन खुदा ही हमारे लिए ताकत बख्शता है ताकि हम उन पर गालिब आएं। So the experience of David is also our experience. तो दावीद का एहसास और तजुर्बा जो है हमारे भी हैं। Yeah, David faced a physical enemy, but we faced a spiritual enemy. दावीद के सामने तो जिस्मानी दुश्मन था, लेकिन हमारे सामने तो रूहानी दुश्मन है। Yeah, but through Lord Jesus Christ, we won victory. हमारे खुदावंद यीशुआ में हम गलबा हासिल करते हैं। The victory won on the cross. हमारे लिए खुदावंद यीशुआ ने सलीब पर गलबा हासिल किया। He paid the great price in order to deliver us from the power of darkness. तारीकी के उसकी कुव्वत से, तारीकी की कुव्वत से हमें छुड़ाने के लिए खुदावंद यीशुआ ने बहुत बड़ी कुर्बानी की है। When Paul he writes to the saints at Galatia, and he is mentioned that we are delivered. Colossians, we are mentioned that how he has delivered us from our strong enemy. इसीलिए कुलोसियों की किताब में हम पढ़ते हैं कि खुदा ने हमें हमारे बड़े दुश्मन से किस तरीके से छुड़ाया। Yeah, what a wonderful God. हमारा खुदा कितना ही अजीम खुदा है ना। So he delivered us from power of darkness. उसने हमें तारीकी की कुव्वत से छुड़ाया है। Yeah, Colossians chapter 1 कुलोसियों की किताब बाब नंबर 1 and verse 13 and 14. और 13 और 14वीं आयतें। Who has delivered us from the power of darkness, has translated us into the kingdom of his dear Son, in whom we have redemption through his blood, and from even the forgiveness of sins. उसी ने हमको तारीकी के कब्जे से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया, जिसमें हमको मखलसी यानी गुनाहों की मुआफी हासिल है। Yeah, we have redemption. हमारे लिए मखलसी हासिल हुई है। Yeah, from the through the blood of Jesus Christ. हमारे खुदावंद यीशुआ के खून में मखलसी हासिल हुई है। Verse 14. We have redemption through his blood, even forgiveness of sins. 14वीं आयत, जिसमें हमको मखलसी यानी गुनाहों की मुआफी हासिल है। Willingly allowed his body to be broken. खुदावंद यीशुआ ने अपनी मर्जी से अपने बदन को तोड़ने के लिए दे दिया। Shed all his blood for our redemption. अपना पूरा खून हमारी मखलसी के वास्ते बहा दिया। So much of love. इतनी मोहब्बत हम पर उसने जताया। Yeah, that's what he endured all the sufferings on the cross. इसीलिए सलीब पर इतनी सारी बड़ी अजियत उसने उठाई, David understood the love of God. ताकि हम उसकी मोहब्बत को जानें। That's what he said, Lord, I love thee. इसीलिए दावीद कहता है, ए मेरे खुदा, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। We also say, Lord, I love thee. इसीलिए हम भी कहेंगे, ए मेरे खुदावन, मैं आपसे मोहब्बत रखता I हूँ। was bound by devil. I was bound by devil. मुझे दुश्मन ने, सातान ने अपने कब्जे में रखा। No joy in me. मुझ में खुशी नहीं थी, But the day when you have delivered me, लेकिन जिस दिन आपने मुझे छुड़ाया, you have filled with me joy unspeakable and full of glory. मुझे आपने ऐसी खुशी से भर दी जो बयान से बाहर है। Yeah, since then you have become my strength. और उस वक्त से आप मेरी कुव्वत बनते आए। I overcome every attack of the enemy. मेरी जिंदगी में सातान या दुश्मन का हर वार पर मुझे गलबा देते आए। You are training me day by day. आप मुझे दिन ब दिन तरबियत देते आ रहे हैं। Through thee I will overcome the strongholds of the enemy. आपके जरिए से मैं दुश्मन के हर किले पर मैं गालिब आऊंगा। Victory after victory. गलबा पे गलबा हासिल करूंगा। What a wonderful God. कितना ही अजीम खुदा है We ना। also join with David and say, Lord, I love thee. You are my strength. You are my God.
You are my rock, you are my buckler, you are my high tower. इसीलिए हम भी दावीद के साथ जुड़ेंगे और हम भी दावीद के साथ जुड़कर कहेंगे, हमारे खुदा से कहेंगे कि ऐ मेरे खुदा, तू ही मेरी कुवत है, तू ही मेरी चट्टान है, मेरा किला, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा खुदा, मेरी सिपर, मेरी नजात का सींग और मेरा ऊंचा बुर्ज है। Yeah, then our worship will be acceptable unto God. तब हमारी इबादत हमारे खुदा के सामने मकबूल ठहरेगी। With these few thoughts we go to worship. इन चंद बातों के साथ हम हमारे खुदा की इबादत में शामिल हो जाएंगे।